Welcome, everyone, and thank you for joining us at another episode here at ABCD Learning Never Ends. I am Shakshi Jain, your host for today, a counseling psychologist associated with ABCD. Today, we are venturing into the captivating realm of psychology and how different psychologists work with the general population. जैसा आप सबको पता है, ABCD is a school dedicated to fostering a deeper understanding of the human mind and the tools to cultivate a thriving profession in this domain. Mental health awareness हमारा मिशन का cornerstone है, and ABCD is fortunate to have a phenomenal guest to guide us through this conversation. Joining me today is Dr. Abhilasha Agarwal, a highly respected clinical psychologist with a wealth of experience. She has worked with children in the field of education and has even worked in Tihar jail. Abhilasha ma'am, I am fortunate to welcome you to the show today. Ma'am, if you could please introduce yourself as well as apna role within the field of psychology. Thank you, Sakshi. Thank you so much for inviting me today. And yeah, so about myself, as Sakshi has already mentioned, so I am a practicing clinical psychologist in Jaipur. Along with that, I am also an assistant professor at Amity University, Jaipur. Begun my journey in 2018 because in 18 itself I completed my MPhil, and in 19 I enrolled in my PhD, which is the thesis is submitted. So yeah, and within these 5 years I've worked in different setups like in psychiatric clinics, in multi-specialty hospitals, and currently I went into this educational field, which is new, and I've also been providing internships at my own clinic. I have my own clinic as well in Jaipur with the name of The Beautiful Mind, and it's been there since last 5 years now. मैंने आपके क्लिनिक के बारे में काफी पढ़ा एंड आई सॉ दैट दे हैड स्टेलर रिव्यूज ऑल द वे तो मैम कुड यू टेल मी आपको साइकोलॉजी की फील्ड में आने के लिए टू परस्यू अ करियर इन दिस न्यू फील्ड आपको क्या इंस्पायर किया? Did not have psychology in my 11th 12th, but then I took psychology in my bachelor's, which was suggested by my counselor, my career counselor per se. So of course I had other subjects which are nowhere related to psychology. Those were zoology and botany because I was a science student. So but then Okay. when I read about psychology and how human behavior and how it works, and the environment, social psychology, because that time in during the bachelor's, no, we had different domains. So social psychology was there, cognitive was there, clinical psychology was there, general was there. So I developed my interest over there in psychology, and जहाँ मैं zoology में आगे बढ़ना चाहती थी, but then it changed altogether for me, and I went ahead with psychology in my masters because I was so interested in it. Whenever I used to study psychology, I never felt bored, and it was always something which kept me occupied for most of the time. Ki acha ye I started understanding ki acha psychology is there everywhere, like however we function and the other person's behavior and everything. So that's how I can say, I somewhere developed my interest. And after that I pursued masters just after, right after my bachelor's. And after that I did not know what to do because I wasn't aware about this field, MPhil. So after 2 years, then I got admission in MPhil clinical psychology, which was in 2016. And then yeah, after that it's all. So I'm here today talking about this field. What a lovely journey, ma'am. Ma'am, you mentioned that how you were not as much aware about the field and what you had to do to gain more qualification and certifications to practice in the field. So could you tell our audience today what qualifications and certificates are required? Our education की field में recently हमने इतना बड़ा change देखा है regarding our MPhil and like what would get you a license. So if you could share your opinion about it. Okay, it's very simple. See, currently so far what is happening, so the bachelor's which we pursue, which is of 3 years, okay, and masters of 2 years. So abhi Yes. kuch students ka question hota hai, they are confused that do we need to have psychology in school also to pursue it after school and in college. So ऐसा कुछ नहीं है. आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जब साइकोलॉजी लेते हैं, सो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं. स्कूल में साइकोलॉजी होना इज नॉट कंपल्सरी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन go with that in school as well. So the basic requirement for pursuing MPhil,
सो क्या होता है ना इस फील्ड में प्रैक्टिस जो है वो आप लाइसेंस के बाद कर सकते हैं और लाइसेंस आपको मिलता है। अभी तक का जो पॉलिसी चल रहा है वो मैं बता रही हूँ, फिर जो चेंज हुआ है वो मैं बात करूँगी। तो अभी तक ये चल रहा है कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो आपको एमफिल या फिर प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स होता है एक और एक साइडी होता है। 3 कोर्सेज़ हैं अभी तक जो चल रहे हैं, वो आपको परस्यू करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 3 इयर्स आपका जो बैचलर्स है वो होना चाहिए साइकोलॉजी में। मतलब साइकोलॉजी शुड बी या तो ऑनर्स होना चाहिए साइकोलॉजी में या फिर साइकोलॉजी वन ऑफ द मेजर आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद 2 साल का मास्टर्स होता है आपका वही क्लिनिकल साइकोलॉजी में होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका प्रॉपर एंट्रेंस होता है जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी में, उसका एक प्रॉपर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। अब उसमें तीनों जो कोर्सेज़ हैं, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी साइडी हम जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली ये तीनों कोर्सेज़ के लिए अलग-अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, अलग-अलग इनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो वहाँ पर आपको क्लियर करना होता है एंड ज जो भी आप जिसमें जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोफेशनल डिप्लोमा जो कोर्स है वो 1 ईयर का होता है, एमफिल 2 इयर्स का होता है एंड साइटी 4 इयर्स का होता है। तो वो तीनों ही कोर्सेज़ में से जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, उसके बाद में आपको आरसीआई की तरफ से एक लाइसेंस मिलता है और ये तीनों कोर्सेज़ लेकिन आप जहाँ से कर रहे हैं वो आरसीआई लाइसेंस्ड होना चाहिए यूनिवर्सिटी भी, आरसीआई अप्रूव्ड होना चाहिए और उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है ऑनलाइन कुछ फॉर्म्स होते हैं वो फिल करना होता है। उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड यू कैन प्रैक्टिस। अब अगर हम बात करें रीसेंट चेंजेस की, तो उसमें ये चेंज हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने चेंज किया है कि जो बैचलर होगा वो 4 इयर्स का कर दिया गया है, जो मास्टर्स है वो 1 ईयर का है और एमफिल की जगह अब नाम दे दिया गया है एमसाइ, मास्टर्स इन साइकोलॉजी, राइट? जो कि टाइमिंग, ड्यूरेशन दोनों का सेम है। जो प्रोफेशनल डिप्लोमा था इन क्लिनिकल साइकोलॉजी उसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर दिया गया है नाम में और साइडी में कोई चेंज नहीं है। और अब इसमें थोड़े से और चेंजेस हैं जैसे कि पहले आपको मास्टर्स करना होगा, उसके बाद में ही आप जो है वो इन तीनों कोर्सेज़ में एंट्री कर सकते हैं और अगर आपने इन तीनों कोर्सेज़ में एंट्री लिया है तो एग्ज़िट भी आफ्टर फिनिशिंग दीज़ कोर्सेज़ था। लेकिन अब एंट्री एंड एग्ज़िट थोड़ा-सा चेंज हो गया है। सो इफ यू वांट आई कैन इलैबोरेट ऑन दैट एज़ वेल। Ma'am, please, this is very interesting, and I am pretty sure इसके लिए this is valuable information. ओके। सो पहले ऐसा था यानी अभी ऐसा था कि अगर मैंने पीडीसीपी में अगर एडमिशन लिया है तो मैं पीडीसीपी करके निकलूँगी। अगर मैंने एमफिल में लिया है तो एमफिल, पीडीसीपी साइडी में लिया है तो साइडी। अब ऐसा हो गया है कि अगर आपने 4 इयर्स का बैचलर्स किया है तो भी आप सीधा इन तीनों में से किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीडीसीपी के लिए, एमफिल के लिए या साइडी के लिए। ये जो 2025-26 के बाद ये चेंजेस आएगा। सो टिल 25-26 ये चेंजेस मतलब अभी जो करंट पॉलिसी चल रही है वो रहेगी, उसके बाद में वो चेंज होगा। तो बैचलर जो 4 इयर्स का मैं बता रही हूँ वो होने वाला है और बैचलर्स के बाद सीधा आप अम, पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है पीजीडी-सीपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या एमसाइ के लिए या साइडी के लिए। दूसरा एंट्री लेवल है कि आपने 4 इयर्स का बैचलर किया है, 1 ईयर का मास्टर्स किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एंट्रेंस होगा। या फिर वही कि 3 इयर्स का आपका बैचलर्स है, 2 इयर्स का आपका मास्टर्स है एंड आफ्टर दैट यू कैन अ एंटर इन दैट फील्ड। अब क्या है कि अगर आपने 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एमफिल करना है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू कैन बेसिकली यू कैन ट्राई एंड एंटर इन एमफिल। सो यानी कि फिर उसके बाद आप एंटर आपने किया था पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में जो कि 1 ईयर का है, लेकिन आप डिग्री लेके निकलेंगे एमफिल की, आपको उसमें 1 साल और करना पड़ेगा। यानी आप पीजी डिप्लोमा एमफिल में यानी जो अब एमसाइ होने वाला है। ऐसे ही अगर एमसाइ के 2 साल के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे साइडी करना है, तो आप 2 साल के बाद सीधा साइडी में एंटर कर सकते हैं या आप 3rd ईयर में एंटर करेंगे साइडी के। तो ऐसे फिर आपने एंट्री किया था एमफिल पे लेकिन आप साइडी करके निकलेंगे तो आपको डिग्री मिलेगा साइडी का। ऐसे ही एग्ज़िट के लिए भी है, अगर आपने साइडी में एडमिशन लिया है, तो उसमें आपको 2 एग्ज़िट पॉइंट मिलते हैं। पहला है आफ्टर 1 ईयर तो आपको डिग्री मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी जो कि हमारा पहला कोर्स है। अगर आपको लगता है कि नहीं 2 साल हो गया मुझे 4 साल नहीं कंप्लीट करना है,
साइडी में, तो आप 2 साल के बाद भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और आपको एमफिल का डिग्री मतलब एमसाई का डिग्री उसमें मिल जाएगा। सो ये एंट्री एंड एक्सिट पॉइंट्स इसमें ऐड किए गए हैं। कि इसका ना पूरा डॉक्यूमेंट है अवेलेबल आरसीआई की वेबसाइट पे, अगर और डिटेल में आपको जानना है क्रेडिट सिस्टम है एंड एवरीथिंग, तो आप उस पे जा सकते हैं, उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उसमें पूरा डिटेल में मेंशन है ये, और अगर आप पढ़ना चाहें। That is wonderful information, मैम। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि एबीसीडी के जरिए मेरे को ये मौका मिला कि मेरे को इतनी डेप्थ में एक प्रोफेशनल इन द फील्ड से पता चला कि कैसे मैं अपने आगे के सफर को जारी रखूं। तो मैम, ये तो आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में बताया। सो इफ यू कुड गिव मी फर्दर इंसाइट इनटू द एडिशनल प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, एंड क्या उनके रोल्स होते हैं, क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, उनका क्या स्कोप होता है, कौन किसके पास जाना चाहिए जब उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो। अच्छा, देखिए, क्लिनिकल के अलावा जो कोर्सेज़ हैं, जो फ़ील्ड्स हैं, वो आप देख सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी है, ठीक है? तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट फ़ील्ड में ना ऐसा होता है, स्पेसिफ़िकेशंस होते हैं, जैसे कि अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, तो वही मास्टर्स तक आपको आना होगा। मास्टर्स के बाद में फिर देयर इज़ दिस कोर्स एडवांस अ, पीजी डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो वो आरसीआई लाइसेंस्ड कोर्स होता है, 1 ईयर का होता है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ना सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज़ रन होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए कोई डिग्री नहीं होती कि हाँ, आप ये डिग्री करेंगे तो चाहे साइकोलॉजिस्ट बन जाएँगे, ठीक है? उसके लिए होता क्या है कि एमफिल या एमसाई जो है ना, वो एक सेंटर डोमेन आप बोल सकते हैं, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है करिकुलम के अंदर। अब आपके ऊपर है कि अगर आप एमसाई के बाद में स्पेसिफिकली किसी एरिया में जाना चाहते हैं, जैसे कि और अदर एरियाज़ की मैं बात करूँ, तो चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, उसके अलावा अपना हो गया स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो अगर आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, उसका एक डिफरेंट अपना कोर्स होता है। तो हालाँकि ये सारे जो कोर्सेज़ हैं, ये इंडिया में अभी बहुत सारी जगह पे नहीं रन होते हैं। कुछ-कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो वो हमें थोड़ा-सा सर्च करना पड़ता है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में किसी तरह का स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की कोई अभी तक डिग्री नहीं आई है एज़ सच साइकोलॉजी में। लेकिन हाँ, उसके कुछ कोर्सेज़ हो सकते हैं, कुछ जैसे कि सर्टिफ़िकेशन हो सकता है, डिप्लोमा या फिर फर्दर ट्रेनिंग भी हो सकती है कि आप किसी अंडर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अगर आप इंटर्नशिप करते हैं समथिंग लाइक दैट, तो आप उस स्पेसिफ़िकेशन में जा सकते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी एक होता है जिसमें थोड़ा-सा फिजियोलॉजिकल साइड में जाते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हैं, तो वहाँ पर आप फिजियोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें डील कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि किसी को गैस्ट्रिक इश्यू है, किसी को प्रेगनेंसी का इश्यू है, तो इश्यू इन द सेंस कि प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कुछ साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप उस एरिया में भी जा सकते हैं। उसमें भी स्पेसिफिकेशन हालाँकि एमफिल में वो भी इंक्लूडेड है, वो सारा कोर्स उसमें होता है, तो उसके बाद भी जा सकते हैं और उसके अलावा आपको जाने का इच्छा है तो अगेन ट्रेनिंग इज़ द वे टू प्रोसीड फर्दर। उसके अलावा फोरेंसिक साइकोलॉजी होता है, उसके लिए हमारे पास गुजरात में नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप उसमें फोरेंसिक के तो अब कोर्सेज़ फिर भी आने लगे हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजी में कोर्सेज़ आने लगे हैं, सर्टिफिकेशन भी, डिप्लोमा भी, तो वो आप सर्च कर सकते हैं, वो जहाँ पर भी आपको मिलता है। तो वो करने के बाद सर्टिफिकेशन या फिर किसी तरह का कुछ एक आपको एक पेपर कुछ ना कुछ एक ऑथेंटिक लेटर आपको मिलता है कि अच्छा ठीक है, अब आप इस पॉपुलेशन के साथ काम कर सकते हैं। उसके अलावा न्यूरो साइकोलॉजी भी एक कोर्स होता है। तो न्यूरो साइकोलॉजी के अंदर ऑफ कोर्स जो न्यूरो ब्रेन रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारा डिमेंशिया हो गया, पार्किंसंस हो गया, ये तो हो गए थोड़ा-सा अबनॉर्मल साइड में। लेकिन अदरवाइज़ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ ब्रेन इज़ रिलेटेड टू माइंड, सो वो आप उस न्यूरो वाले एरिया में जा सकते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं, डिपेंड करता है कि आपको बेसिक जो हमारा डिग्री है ना बैचलर्स का एंड मास्टर्स का, वो आपको करना होता है एंड उसके बाद आप चाहें तो एमफिल में भी आ सकते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें कवर अप होती हैं एंड देन यू कैन वर्क फर्दर इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट। वहाँ पे आप जैसे कि ऑन्कोलॉजी भी हो गया, साइको ऑन्कोलॉजी भी हो गया, तो उसमें हमने देखा है क्या होता है कि आपने एमफिल किया और उसके बाद में आप किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के यू आर वर्किंग, सो यू आर गेटिंग ट्रेन्ड ओवर देयर इन हाउ टू डील विद ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स। सो देयर समवेयर यू गेट ट्रेन्ड कि ओके हाँ, यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है। सो दैट्स हाउ एंड आउट एमफिल आप अगर अपना मास्टर्स कंप्लीट करके कोई डिप्लोमा कोर्स या कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, तो भी आप उस फील्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अ, बात ये है कि अब नॉर्मल या अगर हम बात करें क्लिनिकल पॉपुलेशन की, अगर उसमें आपको प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी फॉर श्योर। आप अगर हम बात करें कि डिफरेंस क्या है इन सारे फील्ड्स में,
अगर हम बात करें काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट, इसमें सबसे ज़्यादा मैंने कन्फ्यूजन देखा है स्पोर्ट्स, हेल्थ, न्यूरो, फोरेंसिक, ये नाम से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, लेकिन ये फील्ड्स नहीं होते हैं। तो समझने के लिए यहाँ पे ये है कि अगर आपने बैचलर्स एंड मास्टर्स किया है, तो उसके बाद आप खुद को साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। अब इनका रोल ये होता है कि आप डे टू डे इश्यूज़ जो होते हैं, अ, जैसे कि एग्ज़ाम स्ट्रेस हो गया या स्मॉल कोई फाइट हो गई, स्कूल में जैसे बच्चों में कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो आप डे टू डे की जो समस्याएँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे यू आर वेल वर्स्ड टू डील विथ, राइट? और अगर माइल्ड लेवल पे अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि डिप्रेसिव सिम्पटम्स है, एंग्जायटी है, माइल्ड लेवल पे, तो टू सम एक्सटेंट यू कैन हेल्प। और उसमें भी कई लोग क्या करते हैं कि मास्टर्स के बाद में कई सारे ना सर्टिफिकेट कोर्सेज़ होते हैं या ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, वो करते रहते हैं फर्दर, जैसे कि फैमिली काउंसलिंग में कर लिया, फैमिली थेरेपी में कर लिया, मैरिटल थेरेपी में कर लिया। तो उसमें करने के बाद या सीबीटी में कुछ कर लिया, तो वो करने के बाद वो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन स्टिल समव्हेयर अब ये जो करियर काउंसलिंग है या ये वाली चीज़ है, इसमें यू कैन गो क्योंकि ये क्लिनिकल पॉपुलेशन में नहीं आते हैं, तो यहाँ तक ठीक है। अगर आप बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम किसको बोलते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने 2 साल का एमफिल किया है या साइटी किया है या प्रोफेशनल डिप्लोमा पीडीसीपी जिसको हम बोलते हैं, वो किया है। ये तीनों तरह के जो कोर्सेज़ हैं, इसमें आरसीआई का लाइसेंस मिलता है, जिसके बाद आप खुद को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं और आप वहाँ पे प्रॉपर क्लिनिकल पॉपुलेशन से डील करते हैं, राइट? अब बात करें साइकियाट्रिस्ट की, साइकियाट्रिस्ट वो होते हैं जिन्होंने अ एमबीबीएस किया होता है या एमबीबीएस उनका साइकियाट्री के अंदर होता है, तो ये मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, राइट? जैसे कि हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के डोमेन में ही आते हैं सब, लेकिन साइकियाट्रिस्ट मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं। जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है या फिर बीमारी अगर मान लीजिए थोड़े साइकोसिस साइड में जा रहा है या मूड डिसऑर्डर्स हैं, तो उसमें कभी-कभी हमें मेडिसिन्स की भी ज़रूरत पड़ती है या कोई भी बीमारी अगर सीवियर लेवल पे पहुँच गई है, तो हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो आपको मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स जो होते हैं, वो आपको वाया साइकोथेरेपी आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें थोड़ा-सा और डीपर लेयर में जाके उसे आपकी हेल्प करते हैं कि आप उसे खुद सॉल्व कर सकें। साइकोलॉजिकल टेक्निक्स सिखाई जाती हैं उसमें ताकि पेशेंट या क्लाइंट अपनी खुद की हेल्प कर सके। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब अगर हम बात करें कि जाना कब किसके पास चाहिए, तो देखिए वैसे तीनों ही लोग जो हैं काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट ये एक टीम वर्क होता है, राइट? कोई भी पर्सन अगर हम कहें कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन फिर पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है। सो होना ये चाहिए कायदे से कि अगर किसी भी अब फिर क्या है ना हमें नहीं पता होता, लेमैन को नहीं पता होता कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो आप मेरा मानना ये है कि अगर बहुत ही सीवियर कोई प्रॉब्लम है, लग रहा है कि पेशेंट बिल्कुल अपना सुध-बुध खो चुका है, उसे वो किसी को पहचान नहीं पा रहा है या फिर उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ रही है, तो फिर हाँ, तुरंत उसे साइकियाट्रिस्ट मतलब इमरजेंसी अगर सिचुएशन आ गई है, तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए तुरंत और मेडिसिन्स की हेल्प वहाँ पर नीडेड होती है एट इमीडिएट लेवल। फिर अगर हम बात करें कि अगर लेकिन इश्यूज़ थोड़े अलग प्रकार के हैं जिसमें कहीं न कहीं बहुत टाइम हो गया इश्यूज़ स्टार्ट हुए और बहुत वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। कहीं न कहीं डिप्रेसिव या एंग्ज़ायटी के प्रॉपर सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कोई क्लिनिकल डिसऑर्डर है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वुड बी द बेस्ट पर्सन टू हेल्प। और अगर डेली सॉर्ट ऑफ इश्यूज़ हैं, हालाँकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक सेंटर आप मान लीजिए जो हर तरह की प्रॉब्लम से डील कर सकता है। लेकिन बहुत ही सीवियर हो गया तो साइकियाट्रिस्ट और बहुत ही माइल्ड हो गया तो फिर आप काउंसलर्स के पास भी जा सकते हैं, जो कि डे टू डे स्ट्रेस से डील करने के लिए वेल इक्विप्ड होते हैं। लेकिन कभी-कभी होता है कि सरफेस लेवल पे हमें लग रहा है कि इश्यू थोड़ा-सा ऐसा ही है, लेकिन हो सकता है वो बहुत डीपर इश्यू हो। तो इसलिए फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर मिलकर के भी काम कर सकते हैं और वही अगेन कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हर तरह का इश्यू देख सकता है, लेकिन हम अगर बात करें काउंसलर की, तो वो डे टू डे वाले इश्यूज़ को देखने के लिए वेल इक्विप्ड होते हैं। वेरी वेल मैम, आपने काफी अच्छे से समझा दिया एंड आई एम प्रीटी श्योर मेरी जितनी भी डाउट्स थे वो तो आपने बिल्कुल क्लियर कर ही दिया है। अच्छा और मैम, आई एम प्रीटी श्योर बिकॉज इट इज सच अ न्यू फील्ड कि आपने कभी तो ऐसा हुआ होगा कि कोई कॉमन मिसकंसेप्शन यू फेस्ड अबाउट योर प्रोफेशन कि ओ माय गॉड आप तो पागलों के डॉक्टर हो, व्हिच इज समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली से कि साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट मतलब पागलों का डॉक्टर, वो जो
एंड फिर फिल्मों में भी अभी तक तो अब यू कैन सी दैट दे हैव रिप्रेजेंटेटेड साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट इन अ बेटर लाइट, बट पहले तो वो एक जेल काल कोठरी सी होती थी, चेन बांध देते थे और आपको बेड पे डाल देते थे. सो could you share some common misconceptions that people have about your profession? Yes, the first and foremost is this one only which you just mentioned कि कि हम अगर साइकियाट्रिस्ट या किसी सीपी के पास जा रहे हैं तो हम पागल थोड़े ही हैं. सो एक बीमारी को उन्होंने जोड़ दिया है पागलपन से. मतलब मेंटल इलनेस मतलब पागलपन. ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. दूसरा ये है कि अगर हम जाएँगे, किसी को पता ना चल जाए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, शादी नहीं होगी. ये स्टिग्मा का पार्ट है मैं कहूँगी. और बाकी ये भी होता है, थोड़ा फ़नी है, लेकिन ये भी कहते हैं कि पागलों के डॉक्टर खुद भी पागल होते हैं. तो ये भी हमें बहुत सुनने को मिलता है. और एक और होता है, वो सीपी के लिए थोड़ा मैंने सुना है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बातें ही तो करते हैं. बातें करके क्या होता है, दवाई देंगे तो फिर भी थोड़ा-सा हम बेटर फ़ील करेंगे. तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं देखा जाए तो. तो लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि धीरे-धीरे आफ्टर कोरोना आई वुड से कि चीज़ें थोड़ा-सा बेटर हो रही हैं, थोड़ा-सा लोगों में अवेयरनेस आ रही है. लेकिन हाँ, अभी भी एक रूरल एरिया में अगर हम देखें तो अवेयरनेस आज भी उतनी नहीं है क्योंकि आज भी उन्हें लगता है कि दवाई इज़ द मेडिसिन हियर एंड दवाई लेना ही मतलब इज़ एवरीथिंग फॉर देम. बट देन या अगर थोड़ा कोशिश करते हैं, अगर अवेयरनेस कैंप प्रॉपर्ली अरेंज किए जाएँगे तो उन्हें समझ में आ सकता है कि हाँ, दवाई है, लेकिन दवाई के साथ अगर थोड़ा-सा अगर आप थेरेपी में भी जाते हैं या काउंसलिंग में भी जाते हैं, तो थोड़ा-सा फ़र्क ज़्यादा पड़ता है. तो मिसकंसेप्शंस बहुत हैं, लेकिन वही है कि जो अर्बन एरिया के लोग हैं, अब जैसे मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूँ तो काफ़ी लोग आ रहे हैं. उन्हें बल्कि अब पेशेंट्स ये तक बोलते हैं कि नहीं हमें दवाई नहीं लेनी. और दवाई लेकिन ना वही है मिसकंसेप्शन दवाई के लिए भी बहुत ज़्यादा है कि दवाई लेंगे तो हमें अ, एडिक्शन हो जाएगा, हमें उसका आदत पड़ जाएगी, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो जाएँगे, ऐसा पता नहीं और बहुत सारी चीज़ें हैं. तो मैं ये कहूँगी कि देखिए अ, हम दवाई को भी ज़ीरो पे नहीं ला सकते और थेरेपी को हम 100 पे नहीं ले जा सकते. दोनों का कोलैबोरेटिव वर्क ही पेशेंट को बेस्ट रिज़ल्ट देता है. दवाई ना लेना भी कभी-कभी या बीच में एकदम से छोड़ देना कि हम ले रहे हैं, अब हम ठीक हो गए, डॉक्टर ने तो कहा है कि कंटिन्यू करो लेकिन हमें तो आराम आ गया, तो हम क्यों लें? ऐसा नहीं है. अगर आपने स्टार्ट किया है तो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर डॉक्टर बिकॉज़ डॉक्टर को सही बात पता होती है कि भई कैसे लेना है, कितना लेना है, कब तक लेना है. आप उसे एकदम से बीच में नहीं छोड़ सकते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. और दूसरी बात सिर्फ़ दवाइयों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए. मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, जिनकी 15 साल से 10 साल से दवाइयाँ चल रही हैं एंड देयर कांस्टेंट कंप्लेंट इज़ कि हम तो ठीक ही नहीं हो रहे, हम दवाई भी ले रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम ठीक नहीं हो रहे. तो वही बात है कि सिर्फ़ दवाई लेने से भी इनफ नहीं होगा, आपको दवाई एंड थेरेपी साथ में लेना पड़ेगा. अगर माइल्ड टू मॉडरेट होता है केस, तो हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, एक बारी हम दवाई के बिना आगे बढ़ सकते हैं, हम देख सकते हैं कि थेरेपी से चीज़ें होती हैं क्या और क कई कई बार हो जाती है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स. समवेयर दवाई लेने के बाद भी या बात करने के बाद भी जब पेशेंट ठीक नहीं होते, तो क्यों ना कुछ ना कुछ एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है, जो रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है. जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, जैसे कि काउंसलिंग में वो नहीं हो पाता टारगेट, थेरेपी में होता है. तो इसलिए थेरेपी मैं बोलती हूँ कि हाँ, हम सबको लेना चाहिए. एक और कॉमन मिसकंसेप्शन है कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो ही हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ. मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है. साइकोलॉजी दिस फील्ड इज़ जस्ट नॉट अबाउट हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ एंड देन ओनली यू आर गोइंग ओवर देयर. थेरेपी हमें और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं. अगर आप हेल्दी भी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टिल देयर माइट बी फ्यू थिंग्स जो कि आपकी लाइफ़ में इश्यूज़ क्रिएट करते होंगे या तो जैसे कि आपका पर्सनल लाइफ़ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, जहाँ पे अक्सर जब सेम सिचुएशन आती है तो आप अटक जाते हैं या डिसीज़न मेकिंग में कुछ ना कुछ नोबडी इज़ कंप्लीटली हेल्दी यू सी. या फिर अगर हम बात करें पॉज़िटिव साइकोलॉजी की, जो हमें वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़ की जहाँ हम बात करते हैं, मोरालिटी की हम जहाँ बात करते हैं या पॉज़िटिव ट्रेट्स की हम बात करते हैं, तो साइकोलॉजी इज़ अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, जहाँ जो लिमिटेड नहीं है केवल इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए. आप उसके बियॉन्ड भी अगर जाके बात करते हैं कि अच्छा हाउ कैन आई मेंटेन दिस हेल्दी माइंड ऑफ माइन इन अ लॉन्ग टर्म जहाँ पर अगर कोई क्रिटिकल इंसिडेंट आता भी है तो हाउ कैन आई लर्न टू कोप विद इट. अगर आपका फैमिली के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल भी रहा है तो हाउ कैन आई डू बेटर इन दैट मैनर.
हाउ कैन आई हेल्प पीपल, प्रो सोशल बिहेवियर है आपका। तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें काम हो सकता है। तो हाँ, ये ना सोचें कि हम बीमार हैं तो ही हम जाएँ। मेडिसिन के लिए ये एप्लीकेबल है, लेकिन थेरेपी के लिए ऐसा एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा, पागलपन एक बहुत अलग चीज़ है। पागल एक कस वर्ड है मेरे हिसाब से। पागलपन का कोई कनेक्शन नहीं है बीमारी से। जैसे कि हम आपके पैर में फ्रैक्चर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो हम ये नहीं बोलते ना कि अरे तो अपाहिज हो गया। हम ये बोलते हैं इसका फ्रैक्चर हुआ है, थोड़ा समय लगेगा और वो पर्सन ठीक हो जाएगा। सिमिलरली जब हम किसी मानसिक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तो हम उसे टैग दे देते हैं पागलपन का, बट वो पागल नहीं है। उसे बीमारी हुई है, थोड़ा वक़्त लगेगा, ट्रीटमेंट होगा और वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। लेकिन स्टिग्मा है या जो एक नेगेटिव इमोशंस हैं सोसाइटी में या जजमेंट है, वो थोड़ा-सा पेशेंट को भी मुझे लगता है कि उसके रिकवरी पे असर डालता है। तो ये कुछ हैं मिसकंसेप्शंस। प्रीटी श्योर किसी को अगर कुछ भी नहीं पता होगा तो आपकी बातें सुन के उसे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, विच इज सो ग्रेट, सो ग्रेट। So, ma'am, as I saw कि you have so much experience into the field, so could you share some interesting or memorable experiences you had in your career? Memorable ones, I would say, initially when I started, so the first case which I got was a complicated one. So I couldn't help that case because I was still, under training. I was an MPhil. So I remember that I was disheartened to see that, oh, I couldn't help my first patient in my career. And then somewhere, I took it very personally, and I remember I was very upset with this fact. So then I went to my professor and I shared this thing under whom I was seeing that case. So then he sort of, helped me out in making me understand कि ऐसा नहीं होता कि हर केस आपका ठीक होगा, समवेयर इट इज़ अ 50-50 थिंग। एंड जो मेरा पूरा परसेप्शन था टुवर्ड्स दिस फील्ड प्रैक्टिस एंड हेल्पिंग पेशेंट्स, वो बहुत हद तक बदल गया। मुझे लगता था कि चीज़ें बिल्कुल 0 या 100 होती हैं, एंड इफ समबडी हैज़ कम टू अस, तो वो पूरा एक होता है हाइटेंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरे अंदर कि नहीं, ये मतलब ठीक करना ही है, एंड आई यूज्ड टू टेक इट सो पर्सनली। बट देन येस, आई अंडरस्टूड द फैक्ट दैट नो, you cannot help everybody until that person wants to help himself or herself. So that changed. Along with that, yes, every time whenever patients used to come and mention maybe on chat or on call or maybe in clinic that okay, हम पहले से better हो गए हैं और हमारा ये चीजें लाइफ में ये मतलब a lot of I would say, after that, after changing my perception, when patients started coming and they used to share their positive experiences, gratitude, it used to be very overwhelming for me because I never expected that. When you are a professional, though, you judge yourself how you according to how you are performing and according to how your clients are giving you as a feedback. तो वो पॉजिटिव फीडबैक जब जब मेरे पास आते थे और आज भी, मतलब मैं कहूँगी बिकॉज़ आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग, तो आज भी आते हैं ऑन अ डेली बेसिस, मतलब 1-2 मुझे रोज़ाना हमेशा कोई ना कोई बोलता है। और फीडबैक में भी वो लोग बिना मुझे कुछ कहे कभी-कभी मेरे प्रोफ़ाइल पर पोस्ट करते हैं। तो वो चीज़ मेरे लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेमोरेबल, सबसे ज़्यादा एक आई फ़ील लाइक कि ओके, जिस पर्पज़ से हम इस फ़ील्ड में हमने एंटर किया था, वो पर्पज़ फुलफ़िल हो गया। अगर आप एक इंसान की भी लाइफ़ बदल पाते हैं या उसे ठीक कर पाते हैं, हेल्प कर पाते हैं, तो मुझे लगता है वो जो एक हैप्पीनेस है ना, वो बियॉन्ड एनीथिंग है। उसके आगे फिर आपको कुछ नहीं नज़र आता, ना आपका पिछला स्ट्रगल नज़र आता है, ना और कोई मॉनेटरी उसमें बेनिफिट नज़र आता है, एंड देन इट्स लाइक प्योर हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड that कि yes, you could help that person out. So that would be the most memorable, I would say, moment of this career of mine. Sweet thing to say. आपने प्रो सोशल बिहेवियर मेंशन किया था, altruistic behavior मेंशन किया था। I can see those qualities in you पूरा का पूरा। Thank you. Yes. तो मैम, एज यू मेंशन कि यू फेल्ट सो नाइस कि आपने किसी की जेन्युइनली हेल्प कर पाए उनके लाइफ में। So how can you say what does your profession contribute to the overall mental health and well-being of people out there? Being a mental health professional, I would say, in so many ways, I myself and I see other professionals as well, they are contributing, because you see mental health issue जब होता है किसी भी person का, तो it's just not that
द पर्सन इज हैविंग ओनली डिप्रेसिव सिम्टम्स और एंजाइटी सिम्टम्स, बट अगर आप देखें तो उसका पर्सनल लाइफ यानी कि उसके रिलेशंस, उसका करियर, उसकी फिजिकल हेल्थ, वो सब कनेक्टेड है उसकी मेंटल हेल्थ से। तो अगर किसी का मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो पर्सन बहुत आगे तक करियर परस्यू नहीं कर पाएगा या अपना रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाता है, या अपने बारे में जो उसको सेल्फ डाउट क्रिएट होते हैं, तो वो बहुत आगे तक परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो मेंटल हेल्थ इज़ एवरीथिंग, समव्हेयर मेंटल हेल्थ का रोल हर जगह है अगर आप देखें, और हर हर इंसान के साथ है, भले ही आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, या आप साइंटिस्ट हैं, या आप कोई भी फील्ड में आप बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं, तो कहीं न कहीं आप एक डिक्लाइन देखते हैं अपने हर कनेक्टेड एरिया के अंदर भी। कई लोग होते हैं जो बहुत ही रेज़िलिएंट होते हैं, आई वुड से, तो they are still, able to perform good in the connected areas, but then still somewhere something is there which doesn't allow them to be at peace. But then yes, mental health अगर आप इस तरह देखेंगे तो वो एक स्टूडेंट है, अगर उसका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है और अगर वो बोर्ड्स का एग्जाम अपीयर करने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसका पूरा का पूरा जो करियर है वो अफेक्ट हो सकता है वहाँ पे एग्जाम्स की वजह से। तो हाँ, हमारा जो प्रोफ़ेशन है जिसमें हम सब हैं एज़ अ टीम, मैं कहूँगी साइकियाट्रिस्ट भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर हैं, हम सब के सब इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हमारा टीम ना हो तो हू विल टेक केयर ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ अदर पीपल? अब पहले ऐसा होता था कि थोड़ा-सा कलेक्टिविस्ट कल्चर था जिसमें जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करते थे, तो पीपल हैड लॉट ऑफ पीपल टू टॉक टू अबाउट देयर फीलिंग्स एंड एवरीथिंग, बट देन अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ में और थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि ये एक थोड़ा ट्रेंड सा हो गया है कि पीपल आर मोर जजमेंटल एंड दे आर स्केर्ड अबाउट शेयरिंग देयर फीलिंग्स विद अदर पीपल। तो ऐसे में थेरेपी का या इस प्रोफ़ेशन का रोल और बढ़ जाता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरी जो बात है वो सुनी जाए, एक्सेप्ट किया जाए, उसे जज ना किया जाए। तो वो आपको कहीं न कहीं इसी फ़ील्ड के अंदर मिलता है। तो अगर आप देखेंगे ब्रॉड लेवल पे तो ऐसा कोई फ़ील्ड नहीं है, इवन इन मिलिट्री ऑल्सो, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखेंगे तो हर जगह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को या काउंसलर्स को अपॉइंट किया जा रहा है, क्योंकि अब हर इंसान मानने लगा है कि हाँ, हर कंपनी, हर फील्ड में जितने भी लोग हैं ये मानने लगे हैं कि मेंटल हेल्थ इज़ योर should be your first concern, your priority, because if it is there, so the connection of body and mind, healthy mind stays in healthy body. So आपकी health, overall health की मैं बात करूँ अगर, जिसमें physical भी आता है, mental भी आता है, they are equally important. Ma'am, in your last answer, you mentioned कि मेरे को लगता था कि health is 0 या 100, and that is a misconception. A lot of clients, a lot of people who actually go for counseling or go to a psychiatrist, they also have कि मैंने गूगल पे पढ़ा था कि ये बीमारी तो curable ही नहीं है. So what Yes. is the point of all this? So could you explain more about that? कि curable होना नहीं होना, मैं ठीक तो नहीं हो पाऊंगी, मैं, और like what is ठीक exactly? हम्म देखिए, हमारा डेफिनेशन ऑफ वेल-बीइंग भी ये बोलती है, मेंटल वेल-बीइंग, कि जस्ट मेयर एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस इज़ नॉट मेंटल वेल-बीइंग, राइट? अगर हम बात करें कि ये जो गूगल पे सेल्फ डायग्नोस्ड होके लोग आते हैं, पहली चीज़, और वो ये भी पढ़ के आते हैं कि इस बीमारी का प्रोग्नोसिस क्या है, इस बीमारी का इलाज क्या है, तो मैं सबसे अपने क्लाइंट से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, और मैं इन जनरल भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप, हम लोग जो कि डायग्नोसिस करने के लिए अवेलेबल हैं, डायग्नोसिस आप हम पर छोड़ दें, क्योंकि देखिए गूगल पे क्या है ना, या तो आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पढ़िए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वो लोग पढ़ के आते हैं, वो इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी का किसी को मालूम नहीं है, राइट? वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे किसने डाली है, कब डाली है, कितना उसने रिसर्च किया है, वो पर्सन का खुद का एक्सपीरियंस क्या है इस फील्ड में, या उसका डेज़िग्नेशन क्या है इस फील्ड में, नोबडी नोज़ दैट। तो कभी जैसे मैं अपसेट हूँ और मुझे ओसीडी है, मैं अपसेट हूँ अपने ओसीडी की वजह से, और मैंने लिख दिया कि ओसीडी इज़ नॉट क्यूरेबल, बट देन आप समझ रहे हैं कि वो लाखों लोग पढ़ रहे हैं। अब वो जो आपने पढ़ा वो कितना सही है, गलत है, वो सब बात होगी कि मुझे कब से है, क्या-क्या मैंने अब तक इलाज लिया है, क्या-क्या मैंने चीज़ें ट्राई की हैं कि मैं इस चीज़ को ठीक कर सकूँ। बाकी मैं ये समझती हूँ कि साइकोलॉजी में अ, अगर आप साइकोलॉजी क्या या किसी भी फ़ील्ड में अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं,
आपका प्रॉपर आपको ना ट्रीटमेंट भी क्या होता है कि ट्रीटमेंट तो सब लेते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट की बात अलग होती है कि आपको जो मिलना चाहिए वो ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है क्या? जैसे कि अ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैल प्रैक्टिस भी करते हैं, राइट? तो क्लाइंट है क्लिनिकल लेकिन उसके ऊपर कुछ ऐसा थेरेपी किया जा रहा है या ऐसा मेडिसिन दिया जा रहा है जो उस क्लाइंट के ऊपर बनता नहीं है, जो कि सही नहीं है, जो एविडेंस बेस्ड नहीं है बेसिकली, तो फिर क्लाइंट को रिलीफ नहीं मिलता। ऐसे में जो पूरी कम्युनिटी है उस पे बात आती है कि सही नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि एक तो गूगल पे इन चीज़ों को नॉलेज के लिए पढ़ें, लेकिन उसको पर्सनलाइज़ ना करें। उसको आप अपने एक्सपर्ट से चेक करें क्योंकि उसके आगे-पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि ठीक का मतलब क्या होता है, देखिए, आज मुझे पता है मेरे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है। मुझे वो महसूस होता है कि हाँ, उसकी वज़ह से मुझे क्या-क्या इश्यूज़ आ रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ़ में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, कहाँ-कहाँ मुझे सिम्पटम्स आते हैं, मुझे किसी भी चीज़ को देख के एंग्ज़ायटी हो जाती है, मुझे खुद पे डाउट है। जब आप थेरेपी लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो आपको ना एक बदलाव अपने अंदर महसूस होता है। आपको वो समझ में आता है कि ओके, जो इश्यू लेकर के मैं गई थी या गया था, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्फिडेंस, तो अब मुझे वो फ़ील होता है। कॉन्फिडेंस की वज़ह से जो भी चीज़ें मैं अवॉइड करता था या करती थी, अब मैं वो अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। आई एम फेसिंग ऑल माय फियर्स, आई एम फेसिंग ऑल दोज़ सिचुएशंस एंड ऑल दोज़ पीपल जो मैं पहले नहीं कर पा रहा था। ये आपको अपने अंदर महसूस होता है। अगर ये बिहेवियरल था, तो आस-पास के लोगों को भी महसूस होता है कि हाँ, this person can talk now. This person is, more fluent and more open now. She's coming, she's initiating the conversation now. तो वो चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक हम ये बोल सकते हैं कि 100% कोई नहीं होता। वी जस्ट कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनके साथ वी जस्ट मेक पीस और वो ही हमारा ठीक होता है। तो हर इंसान का ठीक और बीमार अपने अंदर हमें महसूस होता है कि अच्छा मैं कितना ठीक हूँ या मैं कितना ठीक नहीं हूँ। तो दैट इज़ द डेफिनिशन ऑफ दैट। What a lovely definition of ठीक मैम। नॉर्मेलिटी की नई definition सीख ली मैंने। मैम, in the past, so much has changed regarding the field itself. And so could you help me understand how much change you have seen in the field and how much change you're expecting in the future regarding the field of psychology and counseling? चेंज बहुत बहुत है। एक तो लोगों की अवेयरनेस में चेंज है और फील्ड के अंदर हम कहें तो करिकुलम में, ट्रेनिंग में चेंज है डेफिनिटली। इन आवर टाइम्स आई वुड से फोकस ऑन द ट्रेनिंग वाज़ नॉट मच, बट देन आई सी नाउ today's time, every student, no matter if they are pursuing bachelor's or master's, they are coming forward for internships by, on their own from, like they themselves are very much interested in pursuing। तो मेरे पास जो इंटर्नशिप के लिए बच्चे आते हैं, पहले वो मास्टर्स ही होते थे, बट अब वो बैचलर्स के भी होते हैं। एंड दे आर सो इंटरेस्टेड, दे आर सो कीन इन नोइंग कि कैसे केस हिस्ट्री लिया जाता है एंड ऑल दैट, तो वो कहीं न कहीं एक बढ़ रहा है। और अब जो रिसेंट आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सॉरी, ने जो चेंज किया है, वो एक बहुत बड़ा चेंज है। इसके अंदर आपको राइट फ्रॉम द बैचलर इटसेल्फ आपका जो फोकस है एजुकेशन का, वो मोर ऑफ द ट्रेनिंग होगा। सो उसके उसके लिए मुझे लगता है कि हाँ, ये बहुत बड़ा एक पॉज़िटिव चेंज है, क्योंकि हम एक तो होता है कि हम एमफिल में जाकर के और सारा कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोज़र हमारा होता था एंड विदिन 2 इयर्स वी हैव टू लर्न एवरीथिंग एंड अंडरस्टैंड एंड स्टडी, तो वो एक बहुत ही हेक्टिक था। लेकिन अगर वो राइट फ्रॉम द बैचलर्स आपका होता है, तो बाय द टाइम यू एंटर इनटू एमफिल और एमसाय, तो उसमें तब तक आपको बहुत सारा ट्रेनिंग की नॉलेज आपको हो चुकी होगी, जो कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हाँ, अ, अच्छा है अगर हम जैसे कि एमबीबीएस के अंदर होता है, हम वेरी फर्स्ट डे से ही हम उसी माइंडसेट से पढ़ते हैं कि हाँ, आफ्टर दैट यू कैन प्रैक्टिस, लेकिन बैचलर्स में यू कैन नॉट प्रैक्टिस। बट देन जिस तरीके से अब कोर्स में चेंज हुआ है, तो हाँ, बाय द टाइम यू एंटर इन, स्टिल यू विल नीड टू pursue एमसाय और एमफिल टू गेट द लाइसेंस, बट देन ये रहेगा कि हाँ, एमसाय में जब आप एंटर करेंगे तो यू विल नॉट बी अ ब्लैंक स्लेट, बट यू विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज कि हाँ, ठीक है, इतना इंटर्नशिप हुआ है, इतना हमारा नॉलेज है ऑलरेडी, और फिर उसके बाद उसको और फर्दर रिफाइन किया जाएगा। फर्दर में चेंजेस, मुझे यही लगता है कि हाँ, अगर जिस स्टूडेंट को क्लिनिकल साइड में जाना है, तो हाँ, उसका शुरुआत से ही अगर मुझे लगता है एक ट्रेनिंग, इंटेंस ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड की जाए तो दैट वुड बी ग्रेट। बाकी हाँ, आई थिंक जो अभी और एक अवेयरनेस को लेकर के अगर जितना ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम हो सकें, सेमिनार्स हो सकें, ताकि लोगों को और समझ में आए कि क्यों ये फ़ील्ड ज़रूरी है, क्यों कंसल्ट करना ज़रूरी है, स्टिग्मा के ऊपर और काम हो सके, लोगों में एक एक्सेप्टेंस
ला सकें कि इट्स ओके टू हैव अ मेंटल इलनेस एंड देयर इज नो शेम इन दैट. Everybody is going through some or the other, problem. So it is just part of a problem. It is not, it doesn't define you as a person. And you are still the same person you were, and it's just an illness जिसको अगर प्रॉपर आपको आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं. So these kind of changes, yes. मेरे को ये मौका मिला कि आई कुड क्लियर माई डाउट्स विद यू. आई एम सो हैप्पी एबीसीडी ने हम लोगों को, मेरे को और जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको ये मौका मिला कि वो आपकी बातें सुन के एक एमिनेंट पर्सन इन द फील्ड जो इतने टाइम से इस फील्ड में है, उनकी बातें सुन के अपने डाउट्स क्लियर कर सके. मैम, आई वुड लाइक टू रैप अप दिस सेशन विथ वन लास्ट क्वेश्चन or a message from you to everyone who wants to pursue a career or pursue psychology as their career, or even for people who think psychology is so interesting and they would not want to know more about it. If you could just send a message to all of those. I have seen one thing, that there are so many students who wants to pursue psychology, but then in their families they are not allowed to, because still parents think that psychology का स्कोप नहीं है, साइकोलॉजी में आगे ग्रोथ नहीं है, साइकोलॉजी ये तो उनको लगता है कि अभी भी ये थ्योरेटिकल कोर्स है. बट आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ द पेरेंट्स हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, ऐसा नहीं है. साइकोलॉजी के अंदर अब जो स्कोप है, अब जो एक चेंज है इस फील्ड में, आप देखेंगे अगर, तो हम साइकोलॉजिस्ट के ऊपर बेसिकली बहुत ज़्यादा बर्डन है, और आने वाले समय में ये बर्डन बढ़ेगा क्योंकि मेंटल इलनेसेस बढ़ रही हैं, या फिर अगर हम बोले तो अवेयरनेस बढ़ रही है. तो हर इंसान कहीं न कहीं अब आगे आ रहा है, कंसल्ट कर रहा है. तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हाँ, आगे आने वाले समय में, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत माइनॉरिटी में हैं, अगर आप देखें जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, तो इसका अब अभी तक क्योंकि नॉलेज नहीं थी, अभी तक स्टिग्मा बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब स्टिग्मा कम हुआ है. अगर आप देखें तो मेंटल इलनेस जस्ट डिप्रेशन, एंग्जायटी, ओसीडी ये नहीं होता, रिलेशनशिप इश्यूज़, ठीक है? कपल थेरेपी जिसमें हम करते हैं, जिसमें डिवोर्स तक बात पहुँच रही है, या फैमिलीज़ के अंदर डिस्कॉर्ड है, तो फैमिली थेरेपी की अगर हम बात करें, तो हर एक एरिया में, हर एक प्रॉब्लम में, छोटी चाहे वो डेली से लेकर के आपका इंटेंसिव कोई कोई बहुत ही डीप प्रॉब्लम हो, रूटेड प्रॉब्लम हो, हर किसी के लिए आप जा सकते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि हाँ, ये मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि साइकोलॉजी का आगे आने वाले ईयर्स में बहुत स्कोप है, बिकॉज़ ये एक बहुत ही, अगर आप देखें तो बहुत आगे तक रनिंग में इसका विज़न एक नज़र आता है कि आगे समय में ये बीमारियाँ भी कहीं न कहीं बढ़ रही हैं, लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है. तो इसलिए साइकोलॉजी आप परस्यू करें, डेफिनिटली करें. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो आप वेरी फर्स्ट ईयर से हर एक चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखें, आप केसेस देखें, आप केस हिस्ट्री एंड एमएससी को प्रैक्टिस करें जितना करना चाहें, पेरेंट्स थोड़ा-सा सपोर्ट करें यहाँ पर, और इंटर्नशिप अगर हो सके वेरी फर्स्ट डे से, तो वो हो सके, तो दैट वुड बी ग्रेट. अब जो मैं देख रही हूँ अर्बन पॉपुलेशन, वो मेडिसिन की तरफ जाना ही नहीं चाहती, वो कहीं न कहीं प्रॉपर थेरेपी के लिए आना चाहते हैं, हालाँकि हम उनको गाइड करते हैं, जब उनको एज़ एंड व्हेन उनको नीड होती है मेडिसिन की, लेकिन ये बढ़ेगा फॉर श्योर. तो डेफिनिटली इसमें सपोर्ट अगर पेरेंट्स का मिलता है, तो वो स्टूडेंट्स आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं. Thank you so much. That what a wonderful message to both students and उनके परिवार वालों के लिए. I am so glad कि I had you today with me in this session, and आपके through मुझे इतनी information मिली. Things I already had a little bit of information, और जिसके बारे में मुझे half baked knowledge थी, उसके बारे में आपने मेरे सारे doubts clear कर दिए. I am grateful and I'm thanking you again and I'd again. like to thank you and ABCD again to provide me this opportunity, because yes, we mental health professionals, we have a lot of experience, but then we sometimes do not get a proper platform to share that, and to enlighten people, to basically share our experiences with people. So yes, I think ABCD has provided me that opportunity, and you also have been a wonderful host. So thank you and ABCD both for having this podcast today. So yeah, thank you so much.